Welcome students. Today in this lecture we will be discussing a topic of non-verbal reasoning and the topic is analogy. This topic will be helpful for students who are preparing for various competitive exams, that is NTSC and various other Olympiad exams. So this is a very common topic asked in your stage 1 and stage 2 exams of NTSC. So let's start. Okay, so the most important thing is you need to read the question properly and then you have to understand what you have to do in that particular question, because a lots of time what the student do, as soon as they see the question paper, they see the question and they start solving. They do not read the question properly, and basically in non-verbal reasoning there are lots of figures in it. Okay, different topics are there and many of them have similar kind of figures. So basically a student may misunderstand a sum on analogy with a sum on classification. Okay, so in order to differentiate between these two topics, we have the question written. We should read the question first and then go on solving the question. So let's read out the question. So in this what we have to do, each of the following questions consist of two sets of figures. Okay, figures A, B, C and D constitute the problem set, while figures 1, 2, 3, 4 and 5 constitute the answer set. There is a definite relationship between figures A and B. Establish a similar relationship between figures C and D by selecting a suitable figure from the answer set that would replace the question mark in figure D. So I hope the question is clear. So let's start with the first question. Okay, see what is given in this question. Select a suitable figure from the answer figure that would replace the question mark. Fine. So in the main question they told us that you have to observe the figure A and B and establish a relationship and apply that relationship to C and D. Okay, so if you see the figure A, it is a pentagon. Okay, and in the next figure, that the size of that pentagon has reduced and we have turned this pentagon by 90 degrees in clockwise direction, right? So same will happen with the square also. Okay, this square will be rotated by 90 degrees and the size will reduce. And if you see clearly in figure B, a new square is introduced, right? So same way a square is introduced only in this figure. Okay, and if you see, when you rotate the inner square by 90 degree, it will again look the same like this. Okay, and the sizes become small. So the correct answer to this question will be, the figure number D should be your option number 3rd, that is option number C. So the third figure is the correct option over here. Okay, so let's move on to the next question then. Okay, see, select a suitable figure. Again you have to do the same thing in this. As we are doing analogy, we will be doing the same thing, right? Now if you see the figure A and B, okay, you have to establish some relation. What relation is there between A and B? So if I observe properly, okay, assume that the leaf without shaded is this one. Okay, and the shaded halfly shaded leaf is this type. Okay, so this particularly dotted line is representing what? The half shaded leaf, and the normal arrow is representing what? A unshaded leaf. Now this is representing figure A. Now if you see figure B, it has become like this. Okay, this way, and the partially shaded leaf is like this. So if you see carefully, when you compare this with this, so this is your original position of the unshaded leaf and this is the original position of the this is the original position of your partially shaded leaf and this is unshaded leaf. Now observe properly, the partially shaded leaf, it has turned by 135 degrees. Okay, also if you see and that too in which direction? This is
anti-clockwise. Okay, so anti-clockwise direction. And if you observe this one, the unshaded leaf, that has turned clockwise by 135 degree. Okay, so that is clockwise by how many degrees? 135 degrees. So same will happen over here. The unshaded leaf will turn by 135 degrees. So it will be like this. Okay, and the partially shaded leaf will turn anti-clockwise by 135 degrees. So it will come over here like this. So that means if you represent this in the form of a figure, your figure should be like this. Which is the exact figure representing that? The third one. The third one is representing this. So this is your unshaded leaf and this is your partially shaded leaf. So option number C, third one, is your correct answer. So over here the figures are rotated by degrees. It can be any degree. So you have to make a note of that in analogy this type of question may come. Okay, now the next part. Okay, now if you establish the relationship between A and B, you can see over here that there is a circle with 3 rings. Okay, now if this circle shifts on this position, the ring becomes only 1. Okay, and the square, now square becomes 3 squares are there. So same way what will happen, this when it goes over there it will become 1, and this triangle if it take this position it will become 3 triangles. ठीक है, यानी 3 ट्राइंगल बन जाएंगे. तो यहाँ पे देखो कौन सा फिगर है, दिस वन, राइट, ये एक ही फिगर है. और आपने अगर नोटिस किया होगा तो दे आर स्विचिंग देयर पोजीशन. ये जो स्क्वायर है वो सर्कल के जगह आ गया और जो सर्कल था वो स्क्वायर के जगह चला गया. सो सेम विल हैपन ओवर हियर. इनको भी अपनी पोजीशन स्विच करनी पड़ेगी, राइट. सो यस, सो ये जो ट्राइंगल है वो बॉटम में आ जाएगा एंड एक से वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट, दिस वन. और ये जो लाइंस जो 3 है, परपेंडिकुलर लाइंस यू कैन से, जो 3 है वो एक में कन्वर्ट हो जाएगी. सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट फिगर है, दैट इज द करेक्ट सोल्यूशन ओवर हियर, राइट. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है. Okay, select a suitable, same thing you have to do. Now note one thing over here in this question. As soon as you see the question, आपको देखो क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या करना है. अब जैसे कि देखो, अगर मैं इसको रोटेट करूं, इमेजिन दैट इफ आई एम रोटेटिंग बाय 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो लाइन है वो तो ऐसे टॉप पे आ जाएगी, राइट, बट ये जो है वो एरो ऐसा हो जाएगा, राइट. बट इन द फिगर इफ यू सी वैसा नहीं है. तो और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सो यू हैव टू थिंक ऑफ इट. तो मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से कि मैं मिरर यहाँ प्लेस कर देता हूँ. अब मिरर में अगर यहाँ प्लेस करूँगा तो रिफ्लेक्शन कैसा रहेगा, ये लाइन ऐसी आएगी और ये मेरा बन जाएगा ऐसा. ओके, एरो विल बी गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. सो आई कैन सी द सेम फिगर ओवर हियर, ठीक है. यानी ए और बी में रिलेशन क्या है, ए का मिरर इमेज है बी. अगर आप मिरर को बॉटम पे रखो तो सेम वे अगर सी के नीचे आप मिरर रखोगे सो यू विल गेट अ फिगर समथिंग लाइक दिस, ठीक है. ये वाला फिगर मिलेगा आपको. तो कहां पे है ये वाला फिगर, द फर्स्ट ऑप्शन. अब देखो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, यस. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया है. देखो ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. मिरर जब आप यहाँ रखोगे, राइट, बाकी के जो सब ऑप्शन है दे आर not correct. So the correct option is option number A1. Okay, now let's move on to the next question. Okay, now see this question is a bit tricky one, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो A और B को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे पोजीशन शिफ्ट हो रही है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है. तो ये यहाँ पे था, ये जो फिगर है वो अब कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया, राइट, ठीक है. सो और अगर आप एक रिलेशन ये लगाओ कि ये वाला जो यहाँ पे जो भी फिगर होता है वो सेंटर में जाता है तो इट इज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री, ठीक है. ये एक लॉजिक आपको लग सकता है. तो अगर 90 डिग्री से रोटेट होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है. सो इसलिए ये ऐसा है. अगर यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये जो फिगर है उसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करो और सेंटर में होगा वो, और वो ऐसा होगा, राइट. अगर मैं इसको 90 डिग्री से, ओके वेट, बट
यहाँ पे हम क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, यस, तो इट विल एग्जैक्टली लुक लाइक दैट। बट अगर आप सबके सेंटर में देखो तो ऐसा फिगर दिया ही नहीं हुआ है, राइट? सो दैट लॉजिक विल नॉट वर्क ओवर हियर, आपको कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। ओके, द अदर लॉजिक विच आई कैन सी ओवर हियर इज, लेट मी जस्ट इरेज दिस फॉर दैट। देखो कुछ और लॉजिक हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। लेट अस सी व्हाट इज दैट लॉजिक। ठीक है, तो अभी देखो ये जो सेंटर वाला फिगर है, दैट इज व्हाट, दैट इज यू कैन से एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दिख तो वैसा ही रहा है। अब इसके नीचे अगर आप मिरर लगाते हो आइसोसेलेस प्रिज्म के, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, देखो। ठीक है, तो ये जो फिगर है वो ऐसा मिरर इमेज उसका बन रहा है, राइट? ओके, यहाँ पे भी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं सेंटर वाले फिगर का, तो सेंटर वाले फिगर का मिरर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, और वो सेंटर में था, अब कहाँ पे आ गया? इट केम ऑन बॉटम लेफ्ट, तो ये भी बॉटम लेफ्ट में आएगा, तो वो ऐसा दिखना चाहिए, राइट? सो ये बॉटम लेफ्ट में आ गया और ये देखो वैसा ही दिख रहा है जैसा हम सोच रहे थे, राइट? सो ये ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन में से एक हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक क्या है, देखो ये एरो का लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है, बट अगर आप एक तरह से सोचो कि जो एरो है उसको मैं अगर इफ आई टर्न दिस बाय 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये ऐसा है, राइट? अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ बाय 135 डिग्री, तो ये यहाँ आ जाएगा। यानी हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो एरो है वो 135 डिग्री से रोटेट हो रहा है। सो फिगर यहाँ पे फिगर सी में मुझे ऐसा दिया है, राइट? सो इसको अगर मैं 135 डिग्री रोटेट करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, करेक्ट? और ये सेंटर में सब जगह ऑप्शन में यही दिया हुआ है, या तो इन दी यू कैन से ईस्ट डायरेक्शन या तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ये एरो। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे भी एरो उसी साइड जा रहा है और यहाँ पे भी एरो उसी साइड जा रहा है, राइट? अब फिगर देख लेते हैं ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है उसके साथ क्या हो रहा है, उसका मिरर इमेज लिया जा रहा है नेक्स्ट फिगर में। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज होगा ऐसा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका फिगर। तो यहाँ पे है, यस, यहाँ पे है, नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आपको डिफरेंट लॉजिक जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने डिफरेंट लॉजिक्स आपके माइंड में आपको ध्यान में रहेंगे और उस हिसाब से आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखो ये फिगर में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई सी बिटवीन ए एंड बी? एक वेव फॉर्म हो रही है, वेव, राइट? ये देखो ये ऐसे वेव फॉर्म हो रही है। ओके, सो सेम वे यहाँ भी वेव बननी चाहिए आई गेस। ठीक है, तो ऐसा है तो ये ऐसा करके ऐसा जाएगा। ओके, अब ये देखो एरो वॉज ऑपोजिट टू दिस। ठीक है, ये जो है, ओके, तो वो जो वेव खत्म हो रही है वहां पे एरो था, तो ये यहाँ पे है तो एरो खत्म हो, तो यहाँ पे एरो का साइन आना चाहिए। सो आई गेस ये तो ऐसा होगा। अब देखो नीचे वाले फिगर के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस चीज का मिरर इमेज बनाऊं तो मुझे एग्जैक्टली ये मिलने वाला है, राइट? ये मुझे दिख रहा है साफ साफ। अगर मैं इसका मिरर इमेज करता हूं सो मुझे एग्जैक्टली ये फिगर मिलने वाला है, राइट? सो मुझे इस सिचुएशन में भी इसका मिरर इमेज ढूंढना पड़ेगा। मिरर कहाँ रखना पड़ेगा? एट द बॉटम। तो व्हेन आई डू द मिरर इमेज, ये मेरे को कैसा, हाउ विल आई गेट? ये ऐसा कुछ रहेगा, देन ये ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, एंड ऐसा करके ऐसा। सो आई विल गेस कि ऐसा कुछ फिगर मेरे को मिलना चाहिए मिरर इमेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस मुझे मिल रहा है। ठीक है, यस, करेक्ट, यही वाला इमेज है जो मुझे, देखो बिकॉज व्हेन यू पुट अ मिरर पुट करोगे तो ये क्या हो गया, फ्लिप होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये जो मार्किंग है वो यही साइड रहेगा, इट वोंट गो ऑन दी अदर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये तो नीचे बाजू जा रहा है, बट इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। ये जो होगा दैट विल बी आवर आंसर। ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये एरो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ओके, ये वाला जो फिगर है, अब देखते से ही मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ए में स्टार यहाँ पे था तो वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और अगर आप एक चीज नोट करो कि ये जो एम्प्टी बॉक्स था उसके डायगोनल में ये स्टार था, यहाँ पे भी एम्प्टी बॉक्स जो है उसके डायगोनल में ये स्टार है। तो अगर आप सोचो कि इस फिगर को
इफ आई रोटेट दिस फिगर बाय 90 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं ये पूरे फिगर को, सो आई विल गेट एग्जैक्टली दिस फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर मिलेगा एग्जैक्टली। सो सेम चीज मुझे यहाँ करनी, इस फिगर को भी 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो ये जो सर्कल है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दिस विल बी फुल्ली कलर्ड। ध्यान रखिए इसके साथ ये जो अंदर वाला फिगर है दैट ऑल्सो विल बी रोटेटेड बाई 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से समझ लीजिए ये चिपका हुआ है, अब ये रोटेट होगा तो ये कैसा हो जाएगा, सर्कल यहां बनेगा, ठीक है, और दिस पार्ट विल बी शेडेड एंड दिस पार्ट विल बी शेडेड, ठीक है। ये जो सेंटर वाली लाइन है वो जस्ट मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई है समझने के लिए, अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। सो जब ये 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है, तो 90 डिग्री घूमेगा, सो ये शेडेड पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब कौन सा फिगर जो इससे सिमिलर है, आई गेस थर्ड वाला एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा सी एंड डी, इन सी एंड डी ऑल्सो सर्कल इज शिफ्टिंग बाय 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ पे आ गया, 90 डिग्री शिफ्ट हुआ। सिमिलरली जो फिगर दिया हुआ है दैट विल ऑल्सो शिफ्ट बाय 90 डिग्री, ओके फाइन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C3, फाइन। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ओके, अब ये फिगर अब ध्यान से देखो, तो ए और बी में क्या हो रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो ए में ये जो एरो है, ओके, और ऊपर क्या है, ये सर्कल है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है वो नीचे आ गया एरो के प्लेस पे, और जो एरो था वो सर्कल के प्लेस पे चला गया। अब आप एक चीज नोट करो, जो भी ऊपर जा रहा है वो क्या है, डबल ही है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये एरो नीचे था तो सिंगल था, जब ऊपर चला गया तब डबल चला गया। सिमिलरली ये सर्कल जब नीचे था तब सिंगल था, जब ऊपर चला गया तो इट बिकेम डी डबल। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, ठीक है। अब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो सिंगल हो जाएगा, और ये जो कर्व है वो नीचे आएगा तो डबल हो जाएगा, राइट। यानी यहाँ पे क्या है, पोजीशन स्विच हो रही है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन है जहाँ पे डबल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर थे दोनों, ये फिगर ऊपर था तो ऊपर वाले फिगर डबल हो रहे थे, बट यहाँ पे नीचे वाले फिगर डबल होंगे। सो कौन सा फिगर इसको रिजेंबल कर रहा है, लेट मी जस्ट, ओके फाइन, देयर समथिंग रॉन्ग। देखिए हाँ यस, यहाँ यस करेक्ट, यही चीज हो रही है, बॉटम में जो फिगर है दैट इज गेटिंग डबल्ड, राइट। तो ऊपर वाला यस यस, सो दैट इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। बाकी कोई भी आंसर सही नहीं है, ओके। यस, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एज सुन एज यू सी दी फिगर ए और बी, एक चीज आपको साफ साफ पता चल रही है कि ये जो ब्रांचेस है ये ब्रांचेस का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी उनको ब्रांचेस को फ्लिप किया जा रहा है, बट जो सर्कल्स है वो अपनी जगह पे। तो यहाँ पे भी सर्कल्स को अपनी जगह पे रखो, और इसको समझ लो यहाँ पे मिरर है, इसको फ्लिप कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे मिरर है, देयर इज अ मिरर, अज्यूम दैट देयर इज अ मिरर, तो ये क्या होगा, ये मिरर में ऐसा इसका रिफ्लेक्शन आएगा। सो सेम वे यहाँ पे रिफ्लेक्शन, अगर वही लॉजिक अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, सो यू विल गेट दिस फिगर, द ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है, सेम चीज यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, व्हाट आई थिंक, ये जो अंदर का स्क्वायर है, ठीक है, उसको मैं अगर इफ आई रोटेट इट बाई 45 डिग्री तो मुझे ये छोटा वाला स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यानी समझ लीजिए जो शेडेड पार्ट है उसको अगर मैं 45 डिग्री से रोटेट करूं, सो मुझे ये अंदर ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है वो मिलेगा, राइट। और एंड अगर जो बाहर वाला सर्कल है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हटा दूं, ओके, और ऊपर वाले पार्ट को शेड करके नीचे लेके आ जाऊं, तो ऐसा कुछ दिखेगा वो, राइट। यहाँ पे जो है वो, और ऊपर ये स्क्वायर तो बना ही हुआ है। सो सेम वे अगर मैं वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो जो बाहर का स्क्वायर है, दिस स्क्वायर, ठीक है, उसको अगर मैं 2 हिस्सों में कट कर दूं, ऊपर वाले पार्ट को शेड कर दूं और उसको नीचे लेके आ जाऊं, सेम लॉजिक जो हमने ए और बी में देखा,
ठीक है, जो सर्कल था वो मैंने ले लिया, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऊपर वाले को शेड किया और ऊपर वाले को नीचे लेके आ गया, तो एग्जैक्टली मुझे ये फिगर मिलेगा। सेम वे इन दिस ऑल्सो, जो स्क्वायर था पीछे जो बैकग्राउंड में स्क्वायर है, ठीक है, उसको मैंने लिया, आई कट दैट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ऊपर वाले पार्ट को शेड किया और नीचे लेके आ गया, तो आई गेट अ रेक्टेंगल ऑफ दिस सॉर्ट। अब हमने जैसा देखा, ये जो स्क्वायर है उसको कितना डिग्री से रोटेट किया है, 45 डिग्री। तो सेम वे अगर इसको मैं 45 डिग्री से रोटेट करूं तो वो एग्जैक्टली स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा आंसर होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन है, यस करेक्ट है, सो दिस इज माय आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर है। सो आवर लॉजिक इज करेक्ट ओवर हियर एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर सेम चीज करनी है, ए और बी के साथ हमें रिलेशन देखना है क्या है। ओके, देखो कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 साइड्स। अगर आप ये छोटे छोटे ये थोड़े ईयरबड्स टाइप लग रहे हैं मुझे, तो देयर आर 3 ईयरबड्स बेसिकली, अगर आप देखो तो, ठीक है, देयर आर 3 ईयरबड्स यू कैन सी। ओके, और ये जो ईयरबड्स है वो कहाँ पे, दे आर नॉट एट दी वर्टाइसिस। देखो ये जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड में है, ठीक है। सो सिमिलरली अगर ये फिगर दिया हुआ है, देखो फिगर के साथ तो कुछ आई गेस रोटेशन हुआ नहीं है, अगर हुआ भी है तो रोटेशनल सिमेट्री, आपको पता है ये जो फिगर है दे पोजेस रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। यानी अगर इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट, नहीं 90 भी नहीं, 45 से अगर मैं रोटेट करूँ, सो आई एम गोइंग टू गेट दी, नहीं सॉरी 90 डिग्री आई विल हैव टू रोटेट, इफ आई रोटेट बाय 90 डिग्री मुझे सेम फिगर मिलने वाला है। यानी सिमेट्री का तो कुछ देयर इज नो इशू अबाउट इट। अब ये जो अंदर जैसे कि मैंने बताया कि जो बर्ड्स है, सो दे विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा रहेगा एक और ये दूसरा वाला ऐसा रहेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो समझ लीजिए कॉटन बॉल्स है वो कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी जितने साइड्स उतने कॉटन बॉल्स। सो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कॉटन बॉल्स है। तो ये जो क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज माई करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आप ये दोनों फिगर को कंपेयर करो तो दोनों बाहर के फिगर एब्सोल्युटली सेम है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का जो ये बाहर वाला फिगर है तो उसका आंसर में भी सेम फिगर आएगा। यहाँ पे तो द फिगर हैज बीन रोटेटेड बाय 45 डिग्रीज, तो ये तो नहीं हो सकता है, राइट। यहाँ पे करेक्ट, बाहर का फिगर तो करेक्ट है, बट अंदर के फिगर की अगर आप बात करो सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। बट यहाँ पे तो दे हैव मेड समथिंग एल्स ओनली, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बाहर का स्क्वायर है विच इज नॉट प्रॉपर, तो हम ये नहीं ले सकते। लास्ट वाला फिगर लो, सी मेनी ऑफ देम माइट मार्क द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि यस एब्सोल्युटली करेक्ट है, वो बाहर का फिगर सेम है। बट अगर आप नोट करो तो ये जो दिस एंड्स आर देयर, ये जो एंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग साइड, और यू कैन से दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी साइड, बट यहाँ पे दिस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी वर्टाइसिस, ठीक है। सो अगर आप ऑप्शन नंबर 5 को मार्क करोगे सो यू विल गेट दिस रॉन्ग, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 नाउ, ओके। सो in this video, or rather in this lecture, we will be discussing only up till here, ठीक है। In the upcoming lectures we will be taking some more topics of non-verbal reasoning as well as verbal reasoning, and if you have any queries you can post your queries in the comment section, and do like and subscribe our channel Infinity Scholars Hub. Thank you.